Once more, welcome back to 6 days online course on teaching, testing, and evaluation for Manipuri language teachers of NBS. So here, as I announced in the very beginning of our inaugural session, so there is a change in the schedule. So today, the last session for this is going to be presented by our Dr. Biresh Kumar Ji on taxonomy of educational objectives, TEO Part 1 General. So actually this slot was supposed to be occupied by our Dr. Pankaj Dwivedi on use of ICT in teaching and the testing of language, including social media and the platform. And this is brought back to the slot of the same, slot where our Dr. Biresh could have taken. So I think the session is handed over to our Dr. Biresh Kumar Ji, and I think he will be doing some sort of self-introduction also. Of course, he is intern to the NTS. Thank you, sir. It is handed over to you, sir. Okay. Thank you, Mr. Nandraj Maiti Saab. Myself, Biresh Kumar. I am working in National Testing Service Scheme of CIIL as a resource person for Hindi. As Mr. Maiti has explained that this session was scheduled to be engaged by Dr. Pankaj Dwivedi Saab, but because of some preoccupations, so I am here to replace him with my own topic, that is taxonomy of educational objectives. ये बताइए कि मैं तो ओरिजिनल हिंदी वाला हूं, किसी तरह से अंग्रेजी में भी काम चला लेता हूं. आपको इन विच मीडियम यू आर मोर कंफर्टेबल? आई एम आस्किंग टू द पार्टिसिपेंट्स. Hindi or English? Hindi, sir. Bilingual, sir. Hindi. Bilingual, right? English. हाँ, please. English. ठीक है. So bilingual, I got the point. तो वैसे ही चलेगा. I will show you the slides. Slides are also almost in bilingual mode. It is up to you to see which part you want to see and understand properly. और इस बीच में दोनों ही भाषाओं में उसका explanation मैं दूंगा. Taxonomy of educational objectives के बारे some brief introduction is needed. This is the main document. मैं taxonomy of educational objectives की बात कर रहा हूँ. This is the main document around which all the activities of not only teaching and testing and evaluation, but all the activities concerned to the area of education are performed. And this is the guideline that serves to decide anything pertaining to education. For example, for identifying the needs, then for framing the policies, then designing the curriculums, फिर curriculum के बाद syllabus तैयार करने में, syllabus के बाद text book develop करने में, और text book के बाद पढ़ाई के बाद जांच, teaching, learning, evaluation, पूरे एक्टिविटीज में ये टैक्सोनॉमी ही गाइडिंग फोर्स का काम करती है. और इसी के रेफरेंस में हम एजुकेशन के फील्ड में सभी एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं. आइए अब स्लाइड को शुरू करते हैं. So this is the importance of this document. And one more thing, every participant, you must have done either B.Ed or M.Ed. So during that course, training course, they must have been taught you about the taxonomy. But what happens now?
that things go faded in our minds. When time passes, things get faded. And this kind of training programs are also known as refresher courses. So refresher courses means things are already there, you know the things. आपको मालूम है टैक्सोनॉमी क्या है, लेकिन इस रिफ्रेशर प्रोग्राम में हम फिर से जो आप 20 इकोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कह रहा था कि दिस इज द central document available with us, not only for our India but the whole civilized world, that gives the what is that, serves as a reference point to undertake any work related to education. So this is more visible in this diagram. You see, while deciding the needs, we take help of taxonomy of educational objectives, that what are the objectives or what are the requirements of our society or our country. Once needs are identified, so based on the needs, policies are decided. Based on the, when policies are fixed, then goals are fixed, short-term goals, long-term goals. Based on the objectives stated in the goals, curriculums are designed. Based on the curriculum and its objectives, syllabus तैयार किए जाते हैं. Based on the educational objectives stated in the syllabus, textbooks are prepared. Based on the content of the textbook and objectives stated in the textbook, teaching takes place. When teaching will be there will be learning also. कम होगी, ज्यादा होगी, but learning होगी, teaching होगी तो learning होगी. Teaching, learning के बाद हम evaluation में जाते हैं और based on the outcomes of the evaluation, as a teacher also, as a guardian, as an organization, we redefine, reinvent our needs. हम अपने नीड्स को फिर से ढूंढते हैं और फिर से उसको फिक्स करते हैं. और जब नीड्स फिर से फिक्स हो गए, नए नए नीड्स आ गए, तो पॉलिसीज तो पुरानी नहीं रह सकती. दिस इज वाई आप हमारे, आपके जो सीनियर होंगे थोड़ा सा इस पार्टिसिपेंट्स में, वो जानते हैं कि 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी. फिर 86 के बाद 2005 में, अराउंड 19 इयर्स के बाद, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स आया था फॉर स्कूल एजुकेशन. और 2005 के बाद अगेन आफ्टर पासिंग 15 years almost, we are working under the national education or new education policy 2020. So policies ये चेंज होती हैं क्योंकि नीड्स हमारी बदल जाती. कोई समय था इस देश में हर बाप की इच्छा होती थी, फादर wants to make his son as a lawyer, advocate. आप देखिए जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उनके फादर, इधर वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, लगभग फ्रीडम मूवमेंट के समय इस देश के एजुकेशन की नीड थी कि लॉयर बनना. अभी है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, MBA करना, कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना. सो नीड्स चेंज होते हैं तो फिर पॉलिसीज भी चेंज होती हैं. पॉलिसीज चेंज होती है तो गोल्स चेंज होते हैं. गोल्स चेंज होते हैं तो न्यू करिकुलम आएगा, क्योंकि पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी नहीं है तो करिकुलम पुराना नहीं चलता. करिकुलम नया होगा तो सिलेबस नया होगा. सिलेबस अगर बदलता है तो टेक्स्ट बुक बदल जाते हैं. एज ए टीचर यू नो वेरी वेल, isn't it? When syllabus is changed, text books became outdated, न्यू टेक्स्ट बुक्स आ जाते हैं. फिर जब टेक्स्ट बुक नए होंगे, इट मीन्स उसमें कंटेंट नए होंगे, स्टोरीज नहीं होगी, पोएम्स नए होंगे, नई इंफॉर्मेशन होगी, तो देयर विल बी अ न्यू काइंड ऑफ टीचिंग. एंड टीचिंग इज न्यू, यू आर टीचिंग न्यू थिंग्स, तो बच्चे नई चीज सीखेंगे. और जब टीचिंग लर्निंग नए ढंग की होती है तो इवैल्यूएशन भी नए ढंग का करना पड़ता है. अभी आप देखिए 2 साल की कोरोना के कारण टीचिंग ऑनलाइन हुई तो टेस्टिंग भी ऑनलाइन होने लगी, राइट? सो ऐसा. और ये सिलसिला, दिस प्रोसेस इज एन एवर एंडिंग, नेवर एंडिंग प्रोसेस. इट कीप्स ऑन मूविंग in our life.
दैट्स व्हाई इसका नाम दिया गया कि एजुकेशन इज एन एंडलेस एंड सर्कुलर प्रोसेस। मैं बोल ये रहा था कि इस सारी स्टेप्स में नीड्स का आइडेंटिफाई, पॉलिसीज का फिक्सेशन, गोल्स फिक्सेशन, करिकुलम डिजाइन, सिलेबस डिजाइन, टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट, टीचिंग लर्निंग, टैक्सोनॉमी ही हमारे लिए एक डॉक्यूमेंट का काम करते हैं। क्योंकि यू रीड योर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एवरी टीचर शुड रीड, नॉट ओनली टीचर, हर आदमी जो टीचिंग के काम में लगा हुआ है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो चाहे गार्जियन हो, और टीचर को तो पढ़ना ही चाहिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, ज्यादा नहीं, 62 पेजेज है, आप पढ़िए। एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन, इट इज एक्सप्लेन देयर इन टैक्सोनॉमिकल टर्म्स। क्या बोलते हैं हमको? ज्ञान, नॉलेज सोसाइटी बनाना है। नॉलेज इज अ टैक्सोनॉमिकल टर्म। We have to develop our students understanding. Rote learning is not needed. सिर्फ मगब कर लिया वो नहीं, जानना ही नहीं, समझना चाहिए उनको। So understanding, comprehension, comprehension एक टैक्सोनॉमिकल टर्म है, ठीक? तो इसीलिए हमने कहा कि यही उसका इंपॉर्टेंस है। आप आगे बढ़िए, टेक्स्ट बुक देखिए। टेक्स्ट बुक में आजकल खास करके आपने कोई डिस्टेंस एजुकेशन का टेक्स्ट बुक लीजिए, उसमें वेरी बिगिनिंग ऑफ एवरी चैप्टर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर वो लिस्टेड होते हैं कि आफ्टर अंडरगोइंग दिस चैप्टर the student will be able to know these things, right? Understand these things, do these things, means they will be able to identify noun from verbs. ये एप्लीकेशन का पार्ट है, राइट? तो टैक्सोनॉमी का यही इंपॉर्टेंस है कि एजुकेशन के एवरी एक्टिविटी में टैक्सोनॉमी हमको, हाँ, जैसे टेस्ट बनाने बैठते हैं, क्लास टेस्ट बनाते हैं, तो क्या करते हैं? ब्लूप्रिंट मिलता है, राइट? जिसको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन भी बोलते हैं। ब्लूप्रिंट में क्या होता है? नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन इतना, आउट ऑफ 100 सपोज 60 नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, 20 अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कंप्रीहेंशन क्वेश्चन इज नीडेड, 20 रिमेनिंग मींस व्हाट इज दैट? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये नॉलेज, ये कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, ये टैक्सोनॉमी का ये टर्म है, टैक्सोनॉमी की टर्मिनोलॉजी है। तो पॉइंट इतना ही है माय डियर पार्टिसिपेंट्स कि टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमारे एजुकेशन रिलेटेड एवरी एक्टिविटी में वो हमारे लिए गाइडिंग फोर्स का काम करता है। थोड़ा सा इसका और परिचय हो जाए। ये देखिए हिंदी में लिखा है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये इट इज एन ग्लोबल डॉक्यूमेंट। इट वाज डिजाइन्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट इज मेड इन यूएसए है और 70-80 साल पुराना है ये। आज हम अपने प्रोग्राम्स में इसको डिस्कस करते हैं, अपने बीएड के एमएड के कोर्स में इसको पढ़ाते हैं, लेकिन ये सब 48 से 64 तक कितना हुआ? 16 इयर्स होता है। 16 इयर्स में ये डिजाइन किया गया था इन 2 स्टेजेस। फर्स्ट वाज 48 to 56, वो टैक्सोनॉमी बनी, उसका नाम था कॉग्निटिव डोमेन टैक्सोनॉमी। और फिर 56 से 64 नेक्स्ट फेज में बना, वो बना अफेक्टिव डोमेन टेक्नोलॉजी और टैक्सोनॉमी। और आप जानते होंगे बेंजामिन एस ब्लूम टैक्सोनॉमी भी इसको बोलते हैं। In common terms, we also call it Bloom's taxonomy, because Bloom was the chairman of that committee which was constituted to develop taxonomy. But the thing is that 2 और मेंबर थे उसमें ब्लूम के साथ से, वो प्रोफेसर डेविड आर क्रैथहॉल और प्रोफेसर बीबी मैसिया, ये दोनों भी। बट जैसे थे ना, चांद पर 2 लोग गए थे अमेरिका के सबसे पहले, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग का नाम सभी लोग जानते हैं क्योंकि वो पहले जंप किया था ऑन द सरफेस ऑफ मून। One more person was there, but nobody knows his name. So the same thing happened with the taxonomy also. 3 people were there to design it,
लेकिन चेयरमैन थे बेंजामिन ब्लूम साहब, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी बोलता है, कोई भी क्रैथहॉल टैक्सोनॉमी, मासिया टैक्सोनॉमी नहीं बोलता ऐसा। ये हम आप देख ही चुके हैं। अब आ जाते हैं कि हाँ, नाउ व्हाई टैक्सोनॉमी वाज डिजाइन, व्हाट वाज द नीड, राइट? तो नीड ये था कि उस समय एक सवाल उठा, देयर वाज अ क्वेश्चन इन द एजुकेटेड सोसाइटी दैट व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? Why this many schools and colleges and universities and institutes should be opened and crores of rupees should be spent on their upkeep and payment of salaries and this much examination, that much textbook, ये why, क्यों? तो इसका आंसर आया कि to facilitate all round growth in learner's personality, स्टूडेंट के पर्सनालिटी में ऑल राउंड ग्रोथ होना चाहिए, करने के लिए ही एजुकेशन का पूरा सिस्टम बना। So facilitating all round growth in learner's personality is the ultimate objective of education. Then you see, when you raise a question and some answer comes, so again from that answer many questions arise, right? तो जैसे ही कहा कि एजुकेशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जवाब आया कि टू फैसिलिटेट ऑल राउंड ग्रोथ in learner's personality. So immediately you see how many questions arise. Oh, okay, now what do you mean by student's personality, right? What do you mean by growth? Growth is different from the, what is that, development, right? Okay, and what do you mean by all-round growth? पर्सनालिटी क्या है भाई? आप बोल रहे हैं पर्सनालिटी का ऑल राउंड ग्रोथ। जैसे आप कहिए कि पेड़ का ऑल राउंड ग्रोथ, कोई अपने आप घर के आगे बगीचा लगाते हैं, उसमें पानी डाल रहे हैं किसी पेड़ में, पौधे में, कोई पूछा क्यों, बच्चे ने पूछा क्यों पानी डाल रहे हैं, तो आप कहेंगे इसका ग्रोथ होगा। कहेगा अरे ग्रोथ मतलब क्या होता है, ऑल राउंड ग्रोथ मतलब क्या होता है? तो आप बताएंगे कि स्टेम विल डेवलप, out of stems branches will come out, in branches there will be leaves, when the time come fruit, flower will be there and fruit will be there. That is the ultimate objective, to earn fruits. तो वैसे ही जब बोला कि स्टूडेंट का ऑल राउंड ग्रोथ के लिए एजुकेशन देना है, तो पूछा कि भाई पर्सनालिटी क्या है, ऑल राउंड ग्रोथ क्या है? टू शो दैट, you see, personality is not a tree. You cannot see show it like tree. It is a very vague and abstract concept. Friends, आप जानते हैं अच्छी तरह से, जिन लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी होगी या इधर उधर भी जनरल भी नॉलेज जिनके पास होगा, आप जानते हैं कि साइकोलॉजिस्ट्स have proved that what we see as a personality of anyone, actually that is the 10% of the whole personality. And 90% part is not visible. Even that person doesn't know that what are the traits of his own personality. So ऐसे वेग चीज को ऐसे नहीं दिखा सकते पेड़ की तरह, लेकिन उसको विजुअलाइज कर सकते। We can't see but we visualize. Mentally we can visualize. वही विजुअलाइज करने के ही during the process of visualization टैक्सोनॉमी का स्ट्रक्चर बन के सामने आया, जो उसमें भी स्टेम है, उसमें ब्रांचिंग है, उसमें लीफ है, उसमें फ्रूट्स भी हैं। ये है in the taxonomy of educational objectives or Bloom's taxonomy, whole personality of a student and a person, you can say, because here the under discussion is the student. So whole personality of the student was divided into 3 domains, right? एक को नाम दिया cognitive domain, that is associated with the intellect part of a human being.
thinking, thought process, reasoning, right? Where 2 + 2 always becomes 4. So personality को 3 भाग में, 3 parts में divide किया hypothetically, right? You cannot divide personality like this watertight compartment, but just for the purpose of understanding and showing, visualizing. So ऐसे हुआ, but it is almost correct. हमारा पर्सनालिटी का एक पार्ट होता है जब हम लॉजिक से आगे चलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से आगे चलते हैं, दैट इज कॉग्निटिव डोमेन. हमारे पर्सनालिटी का दूसरा पार्ट होता है जब हम इमोशंस से गाइड होते हैं, राइट? और थर्ड पार्ट इज साइकोमोटर डोमेन, जो हमारा एक्शन पार्ट है. सो कहा गया कि every action of human being is either guided and initiated by his thoughts or his feelings or her feelings or a mix of both. हम जो कुछ भी करते हैं वो या तो हम सोच विचार के करते हैं, फुल प्लानिंग करके, what will be the benefits, what are the pros, what are the cons, या फिर in a fluke of sentiment, rage of fit of rage, गुस्सा में, प्यार में, किसी पर दया आई, 100 का नोट निकाल के दे दिया. ये नहीं सोचते कि उसका वो धंधा, पैसा है. It is his occupation. Begging is his occupation. But we will see his or her position. कपड़ा फटा है, बिल्कुल शरीर गंदा है, एकदम ये है, 100 रुपया दे दिया, सोचा नहीं. सो ये भावना से काम किया. तो ऐसा, या फिर दोनों का मेल जोल होता. तो वैसे ही बताया कि एजुकेशन भी जो स्टूडेंट लेता है वो उसके ये 3 या ये इंटेलेक्चुअल लेवल पर एजुकेशन होती है, मेनली वही होती है, लेकिन सपोर्ट उसका होता है अफेक्टिव डोमेन यानी एटीट्यूड पार्ट. हाँ, ट्रेडिशनली जो कॉग्निटिव डोमेन को इंटेलेक्चुअल पार्ट बोलते थे, अफेक्टिव डोमेन को एटीट्यूड पार्ट बोलते थे, आज भी बोलते हैं. एक्शन को हमेशा एक्शन ही बोलते थे, इसका कोई दूसरा नाम नहीं था. ठीक है. फिर एक नाम था स्कॉलिस्टिक. कॉग्निटिव डोमेन को स्कॉलिस्टिक पार्ट बोलते थे. अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर का दोनों का एक नाम था, पहले नाम था को स्कॉलिस्टिक. पहले नॉन स्कॉलिस्टिक बोला जाता था, तो नन में एक नेगेटिविटी थी, इसलिए को स्कॉलिस्टिक बोला जाता था. और यही मैं बता दूं, आपको अच्छी तरह मालूम है कि 2, 4, 5 साल 6 साल पहले यू वेर डूइंग कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, राइट? वो एक स्कीम आई थी, बहुत उसके गाइडलाइंस तैयार हुए थे, मैनुअल बने थे, सबको ट्रेनिंग वगैरह हुई थी. वो क्या था? कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन मींस क्या? When evaluation goes side by side the process of teaching learning, that is continuous evaluation. But what is comprehensive? Comprehensive का यही मतलब था कि न सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन स्किल्स को हमको बढ़ाना है और उसका हमको स्ट्रेस देना है, और वाइल टेस्टिंग के समय सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन स्किल्स यानी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन को ही नहीं टेस्ट करना है, बल्कि ये जो है अफेक्टिव डोमेन स्किल्स को भी हमको देखना है कि उसका एटीट्यूड क्या है, वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, वो सिंपैथाइजिंग नेचर है उसका कि नहीं, कोऑपरेटिव नेचर है कि नहीं, रेगुलर है कि नहीं, सिंसियर है कि नहीं स्टूडेंट. इन चीजों के बारे में भी हमको टेस्ट करना है, और उसका रिजल्ट ये कॉग्निटिव एबिलिटीज स्किल्स प्लस दिस अफेक्टिव डोमेन स्किल्स, मे बी साइकोमोटर स्किल्स, सब मिला के हमको उसका रिजल्ट निकालते थे. लेकिन वो फिर बंद हो गया. वो बंद हो गया. क्यों हो गया? अच्छा हुआ बुरा हुआ इस पर मेरे को बात नहीं करना, लेकिन वही था कंटिन्यूअस और वही था कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. अभी आप देखेंगे
ये जो फिर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसमें कहीं ना कहीं फिर उस पर स्ट्रेस दिया जा रहा है। ये एटीट्यूड पार्ट पर क्या, तो उसके अंदर देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म होना चाहिए, उसको सोसाइटी के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, उसका कोऑपरेटिव नेचर होना चाहिए, उसके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी होनी चाहिए स्टूडेंट के अंदर। ये फिर से ये चीजें हमारे जो ये 2020 का एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज फिर से मिलेगी। तो ये सब टैक्सोनॉमी है, और इसीलिए हमने कहा कि एजुकेशन पॉलिसी में इसी टैक्सोनॉमिकल टर्म का आपको यूज मिलेगा। आप कोई भी सिलेबस पढ़िए, उसका जो ऑब्जेक्टिव्स जहां पर डिफाइन किया गया है, लिस्ट किया गया है, वहां यही टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगी। After undergoing this subject, the knowledge will be developed, understanding will be developed, ability to apply the rules and theories and principles of that particular subject will be developed in the student's personality. टेक्सोनॉमिकल टर्म्स में ही सारी बात होती। तो वही टेक्सोनॉमी हमारे सामने, थोड़ा सा परिचय हो जाए कि नॉलेज के अंदर देखिए 6 सब कैटेगरीज हैं। कॉग्निटिव डोमेन के, अफेक्टिव डोमेन के 5 हैं। इसमें एक बात आती है कि कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन टैक्सोनॉमी जो है वो ब्लूम और क्रैथहॉल और मैसिया, इन लोगों ने आप की 6 तक कॉग्निटिव अफेक्टिव डोमेन का टैक्सोनॉमी डिजाइन हुआ। 8 साल लगे साहब ये 6 कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करने में, और इसके छोटे सब कैटेगरीज भी हैं, लेकिन कुल मिला के मुख्य चीज यही है, मेन चीज इतना ही है। 8 साल, अगेन द सेम 8 years they took to design and develop अफेक्टिव डोमेन टैक्सोनॉमी, जो ये आपके सामने है। 5 स्किल्स उसमें आते हैं। उसके बाद जो है क्रैथहॉल, मासिया, ये क्या बोले, ब्लूम साहब, इन्होंने ये काम, ये बंद हो गया प्रोग्राम। साइकोमोटर डोमेन टैक्सोनॉमी हमारी जानकारी में 3 लोगों ने डिजाइन किया, और वो तीनों का अलग अलग डिजाइन है। 2 लेडी थी अमेरिका की, किधर गया ये, मिसेस A.J. हैरो एंड मिसेस E.J. सिम्पसन। इन्होंने 72 में टैक्सोनॉमी डिजाइन किया साइकोमोटर डोमेन का। और एक प्रोफेसर R.H. दबे थे हमारे इंडियन NCERT के, वो कर चुके थे 1969 में ही वो टैक्सोनॉमी डिजाइन कर चुके थे साइकोमोटर डोमेन की। तो हम ये जो आपके सामने है, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन एंड ऑटोमेटाइजेशन, ये दबे टैक्सोनॉमी है, दबे इस टैक्सोनॉमी। हम इसी को मानते हैं क्योंकि ये तो अपना देश का आदमी था, नंबर 1। दूसरा ये देखिए 72 ये उससे पहले 3 साल पहले ये डिजाइन करते थे, तो हम इसको मानते हैं। आइडिया ये है कि इन कॉग्निटिव डोमेन में लर्निंग कैसे होती है, और ये जो सबसे ऊपर है वो पहले आता है, नीचे वाला उसके बाद जो स्किल वाइज डेवलपमेंट का जहां तक जो सीक्वेंस है, वो first we try to know the things, right? Then we try to, ये एरो कहां मार जाता है, then we try to understand the things, right? Knowledge और understanding जब हो जाती है, then this ability of application is developed. ये तीनों डेवलप हो जाने के बाद इसी बेसिस पर एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होते हैं। सिंथेसिस क्या है, एनालिसिस का उल्टा है। अगर किसी मशीन को खोलना, डिसेंबलिंग एनालिसिस है, तो असेंबलिंग उसका, फिर से उसको पार्ट को जोड़ देना, वो सिंथेसिस है। और फिर इवेल्युएशन जो है वो आप जानते हैं कि first we try to know the things, then we try to understand the things, then we try to
apply the rules, theories and principles of any subject into action, वो एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में जब आप जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है। किसी चीज को जानकर छोड़ दीजिए, समझकर छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे भगवान न करे आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो देखा भीड़ लगी हुई है, नजदीक गए, तुरंत जानने की इच्छा हुई, जाना कि भाई कोई एक आदमी था वो मोटरसाइकिल से गिर गया, थोड़ा चोट वगैरह आई, तो आप जान भी गए और समझ भी गए, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप थोड़ा एप्लीकेशन में जाइए कि आप चाहिए कि उसको हम हॉस्पिटलाइज करें, तो देखिए प्रॉब्लम शुरू होगी, कैसे जाएगा, अरे एम्बुलेंस कहां से, किस हॉस्पिटल में ले जाएं, वहां फिर भर्ती होगा, उसका गार्जियन कौन बनेगा, उसका खर्चा कौन देगा, एडमिशन चार्ज कौन देगा। एप्लीकेशन की में जाते ही प्रॉब्लम शुरू होती है। तो प्रॉब्लम शुरू है तो वहां एनालिटिकल स्किल्स हमारे काम आते हैं कि हम एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, फिर एक नतीजा निकालते हैं। वी विल ड्रॉ ए कंक्लूजन, कम टू सम काइंड ऑफ डिसीजन। यार ये बड़ा राइट, सो दैट इज सिंथेसिस। और उसके मुताबिक जब हम फाइनल कोई डिसीजन लेते हैं कि हमको इसमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इससे फायदा होगा, नहीं होगा, वो इवैल्यूएशन। ये जनरल लाइफ से हमने बताया। लर्निंग की यही प्रोसेस है। सब्जेक्ट मैटर आप इसको कर देते हैं, अभी वही चल रहा है। आई एम ट्राइंग टू मेक यू नो द टैक्सोनॉमी। उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं तो हमारी ये कोशिश है कि आप इसको समझ जाइए, अंडरस्टैंड कर लीजिए टैक्सोनॉमी क्या है। फिर आप जो क्वेश्चन बनाने चलेंगे अभी 2-3 दिन के बाद, वो एप्लीकेशन के अंदर आएगा। ये नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इसी बेस पर क्वेश्चन भी बनते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, क्वेश्चन भी आप बनाएंगे, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ही बनाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे। फिर जब बनाने चलेंगे तो प्रॉब्लम आपको आएगी। फिर आप पूछेंगे नंदराज जी से, हमसे, इनसे, सर ये इसमें कैसे होगा ठीक है, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे और फिर आप जो उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो कॉग्निटिव डोमेन की लर्निंग की यही प्रोसेस है। इसको स्किल कहा गया है। ये सब स्किल हैं। इसमें नॉलेज अंडरस्टैंडिंग को लोअर ऑर्डर स्किल बोलते हैं और एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन जो है ये हायर ऑर्डर स्किल्स कहलाते हैं। एप्लीकेशन के बारे में देयर इज डिफरेंस ऑफ आइडियाज, ओपिनियन। Some people, some experts say that application is a higher order ability. Some people say that application is a lower level ability. ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको जो मन हो मानिए, एप्लीकेशन को हायर मानिए, लोअर मानिए। लेकिन नॉलेज अंडरस्टैंडिंग पक्का जो है लोअर लेवल स्किल है और एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन हायर ऑर्डर स्किल है। और मित्रों एक बात और मैं बताऊं कि ये नॉलेज वो नॉलेज नहीं है जो हमारे ईस्ट में, इंडिया में, चाइना में, जापान में नॉलेज से जो what we mean by knowledge in Eastern cultures, this is not that knowledge. हमारे यहाँ knowledge means spiritual knowledge. आध्यात्मिक ज्ञान को ही हम ज्ञान बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो है टैक्सोनॉमी, ये ये अमेरिका में डिजाइन है। यहाँ नॉलेज का मतलब इंफॉर्मेशन। इफ यू हैव आप बातचीत में बोलते हैं ना, हाँ ये तो मेरे नॉलेज में नहीं था कि CIL में प्रोग्राम हो रहा है 14 से, मेरे नॉलेज में नहीं था, ऐसा बोलते हैं। ये यहाँ नॉलेज क्या, कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, यहाँ कोई यज्ञ नहीं हो रहा, यहाँ एक प्रोग्राम हो रहा है। सो ये ध्यान में रखिए इस बात को कि टैक्सोनॉमी में वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज मीन्स इंफॉर्मेशन, बाकी अंडरस्टैंडिंग वही है। एबिलिटी टू सक्सेसफुली रिलेट वन इंफॉर्मेशन विथ अदर इंफॉर्मेशंस इज अंडरस्टैंडिंग। क्या हुआ ये नॉलेज है, जान गए क्या हुआ। एक लड़का था मोटरसाइकिल से गिर गया, भगवान न करे कोई गिरे, बट फॉर एग्जाम्पल जस्ट कैसे हुआ ये समझ गए आप कि हाई स्पीड में जा रहा था, उधर से एक कुत्ता आ गया रोड पर, ब्रेक लगाया, गिर गया।
अब आप अंडरस्टैंड, वो एक्सीडेंट को पहले आप जाने फिर आप अंडरस्टैंड करके। तो यही प्रोसेस कॉग्निटिव डोमेन के लर्निंग का। अफेक्टिव डोमेन के लर्निंग की प्रोसेस है कि फर्स्ट यू और योर स्टूडेंट और एनीबॉडी, हम रिसीव करते हैं जो कुछ भी हमको बताया जाता है, या पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं, उसको रिसीव करते हैं, फिर उस पर हम रेस्पॉन्स देते हैं, और वही रेस्पॉन्स शोज दैट वी आर रिसीविंग, राइट। देन अच्छा, यू सी, ये जो मैं एक्सप्लेन करना कोशिश कर रहा हूं, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्किल्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन। सो फर्स्ट वी रिसीव द थिंग्स, स्टूडेंट रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो हम कैसे जानते हैं? ऑनलाइन प्रोग्राम है, कुछ मालूम नहीं हो रहा कौन रिसीव कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ऑफलाइन प्रोग्राम में हम देखते हैं सबके चेहरे का भाव से कि हाँ किसको समझ में आ गई मेरी बात, किसको नहीं समझ में आई, राइट। सो रिसीविंग, उसके बाद व्हाट एवर इज टॉट, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स आर टॉट इन द क्लास, टीचर विल स्पीक। हर किसी को विद्यार्थी अपने दिमाग में, माइंड में नहीं रखता, उसको जो इंपॉर्टेंट लगता है। जैसे आप देखिए ये बिल्कुल क्लियरली विजिबल होता है व्हेन यू जॉट डाउन द पॉइंट्स, नोट्स जो आप लेते हैं। एक ही लेक्चर चल रहे, आप देखिएगा अलग अलग आदमी अलग अलग पॉइंट को नोट करता है, मतलब वैल्यू वो अपनी तरफ से उसका वैल्यूएशन करता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट, ये अभी बोला जो ये लेक्चरर या आदमी जो भी टीचर बोले वो ये इंपॉर्टेंट है, वो नोट कर। सो वो वैल्यूइंग है। उसके बाद लर्निंग सिर्फ क्लासरूम में नहीं होती, लर्निंग हमेशा चलती रहती, एक्सट्रापोलेशन बोलते हैं, आगे चलेंगे। तो वैल्यूइंग का मतलब है हर चीज को जो पढ़ाई जाती है, स्टूडेंट आपका हर चीज को इम्पोर्टेंट नहीं समझता, उसको जो इम्पोर्टेंट लगता है वो उसको इम्पोर्टेंट मानता है, उसके बाद वो उसको अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करता है। एंड व्हेन दैट नॉलेज, दैट अंडरस्टैंडिंग और दैट application ability becomes the part and parcel of that student. जब 2 और 2 4 और 4 और 2 6, 6 और 2 8 जब समझ लेता है बच्चा, तो खाते समय पूछिए बेटा 4 और 2 कहेगा 6, आधा सोया हुआ है तब भी पूछिए 2 और 2 कहेगा 4, ठीक है ना। वही कैरेक्टराइजेशन है, ये एक एक्सप्लेनेशन है जो मैं समझता हूं वो आपको समझा रहा हूं। वैसे इस अफेक्टिव डोमेन के अंदर ही पूरा वैल्यू सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है कि कॉग्निटिव एबिलिटीज बहुत नॉलेजेबल हो गया स्टूडेंट आपका, बहुत अंडरस्टैंडिंग उसकी हाई हो गई, एप्लीकेशन एबिलिटी बहुत ज्यादा उसके अंदर आ गई। उतना ही काफी नहीं है, उसके अंदर वैल्यूज आने चाहिए जो अभी हमने कहा, सत्य, न्याय, जस्टिस, ट्रुथ, टॉलरेंस, कोऑपरेशन, पैट्रियोटिज्म, राइट। ऐसे मूल्य, ऐसे वैल्यूज भी इन्फ्यूज होना चाहिए। बहुत से लोगों का कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन के बारे में ये एक्सप्लेनेशन, लेकिन चाहे ये एक्सप्लेनेशन हो जो मैं कह रहा हूं कि व्हाइल गेनिंग cognitive domain skills, how students' affective domain skills become helpful. This is why जो रिसीव ही नहीं करेगा वो क्या सीखेगा? आप एक टीचर है, सीजन टीचर, 15 इयर्स 20 इयर्स एक्सपीरियंस, क्लासरूम में बैठा हुआ है, अध्ययन है उसका खिड़की से बाहर, वो कुछ सीखेगा? नहीं सीख सकता। तो हमने जो एक्सप्लेन किया अफेक्टिव डोमेन स्किल्स को, वो किया कि कॉग्निटिव स्किल्स के एक्विजिशन में हाउ दे बिकम हेल्पफुल। बट इसका इंडिपेंडेंट एक्सप्लेनेशन भी है जो इसको कॉग्निटिव डोमेन से जोड़कर नहीं देखता, इसको इंडिपेंडेंटली देखता है, और वो इस वैल्यू को वैल्यू सिस्टम से देखता
कि स्टूडेंट के अंदर सिर्फ कॉग्निटिव स्किल्स, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग का ही डेवलपमेंट होना काफी नहीं है, उसको एक सेंसिबल, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनना है। वो चीज यहाँ उसको मिलती है। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारा सिलेबस में, टेक्स्ट बुक में ग्रेट पीपुल्स का, उनका क्या लाइफ स्टोरी, पोएम्स होते हैं जिसमें कोई ना कोई मैसेज होता है ऐसा जो उसको एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्पफुल होता है। ये अफेक्टिव डोमेन का एक्सप्लेनेशन है। साइकोमोटर डोमेन का एक्सप्लेनेशन ये है कि ये लर्निंग के प्रोसेस के प्रैक्टिकल रूप को दिखाता है। सो लर्निंग स्टार्ट्स विथ इमिटेशन, इजंट इट? खास करके कोई भी जो फिजिकल स्किल है, बोलना, स्पीकिंग से लेके, लैंग्वेज यूज से लेके, और कोई भी टेक्निकल स्किल है, स्पोर्ट्स है, गेम्स है, म्यूजिक है, डांस है, उसके सीखने की क्या पद्धति है? गुरुजी पहले स्टेप्स करके मणिपुरी डांस का दिखाते हैं, स्टूडेंट्स को कहते हैं कि जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वैसे तुम भी करो बेटा या बेटी, और वैसे करना शुरू करता है। सो लर्निंग इज स्टार्टेड, वी स्टार्ट लर्निंग विथ इमिटेशन। उसके बाद जो लिमिटेड स्किल्स हम इमिटेशन के थ्रू एक्वायर करते हैं, उसके थ्रू जब हम अनलिमिटेड रियल लाइफ सिचुएशंस को में डील करते, जैसे देखिए 4 गाना सीखा, ठीक है, किसी कलाकार से, गायक से, उस्ताद से, और उसको वह अगर सिचुएशन के अनुसार स्टेज पर उसी गाने से 3-4 प्रोग्राम कर लिया, वो मैनिपुलेशन है। सो लिमिटेड स्किल्स को जो इमिटेशन से हम थ्रू लर्न करते हैं, उसको अनलिमिटेड रियल लाइफ सिचुएशन में जब हम यूज करते हैं या हमारा स्टूडेंट करता है, वो मैनिपुलेशन है। जब उसमें एक्यूरेसी आती जाती है, गलतियां, एरर्स, फैलेसीज कम होते जाते हैं, वो प्रिसीशन है। जब उसके अंदर और बोलते हैं, जैसे मंजना बोलते हैं, देखिए लैंग्वेज यूज में इसका बहुत अच्छा ही आता है। एक सेंटेंस लीजिए, हिंदी में बोलते हैं, मेरा बाप मर गया। ग्रामेटिकली ये एकदम प्रिसाइज है। एवरी रूल ऑफ हिंदी ग्रामर हैज बीन फॉलोड करेक्टली। 100 में 100 या 10 में 10 मार्क्स मिलना चाहिए। सो मेरा बाप मर गया is a grammatically precise and correct, but culturally it is not correct expression, right? हमको बोलना चाहिए मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, वो नहीं रहे, वो गुजर गए, चल बसे, कुछ ऐसे बोलना है। यही आर्टिकुलेशन है। प्रिसीशन के बाद तो हमने लैंग्वेज यूज से एग्जाम्पल दिया। ड्राइवर देखिए, क्लच दबाने से गाड़ी का इंजन का ट्रांसमिशन से कनेक्शन कटता है, एक्सीलेटर दबाने से गाड़ी आगे बढ़ती है, ब्रेक दबाने से रुक जाती है, और स्टीयरिंग को बाएं घुमाते तो गाड़ी बाएं घूमती है, दाएं घुमाते हैं तो दाएं घूमती है। यही 4 एक्टिविटी है गाड़ी चलाने की, राइट? हॉर्न बजाने से लोग, लेकिन इसमें देखिए स्मूथ ड्राइवर होते हैं, रफ ड्राइवर होते हैं, ब्रेक मारा सीधे मार दिया, बाएं घुमाना है सीधे घुमा दिया, सब पैसेंजर अंदर का और सामान इधर का उधर चला गया। सो लेकिन वो प्रिसाइज हो सकती है वो ड्राइविंग, बट आर्टिकुलेट नहीं। तो किसी भी स्किल को हम इमिटेशन से सीखना स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें लिमिटेड स्किल्स में जब हम अनलिमिटेड टास्क परफॉर्म करते हैं तो मैनिपुलेशन है। जब उसमें क्या बोले एक्यूरेसी आती है तो वो प्रिसीशन है। उसमें जब अदर एलिमेंट्स लैंग्वेज यूज में कल्चरल एलिमेंट्स जब शामिल होते हैं, ठीक, गायक कलाकार जितना गुरु से सीखता है उसमें जब अपने तरफ से ऐड करता है, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में उसको उपज बोलते हैं। राग का एक ये है, हाँ,
आरोह है, एक अवरोह है, वो करने से राग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल प्रिसाइज भी होगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उपज जो उसमें डालते हैं, अपनी तरफ से जो जोड़ते हैं, वो आर्टिकुलेशन है। और जब कोई भी स्किल, चाहे लैंग्वेज यूज का हो, चाहे म्यूजिक का हो, चाहे टेक्निकल हो, शूटिंग हो, ड्राइविंग हो, स्विमिंग हो, टाइपिंग हो, कोई भी स्किल जब पार्ट एंड पार्सल बन जाती है हमारा, तो हम बोलते हैं कि ऑटोमेटाइजेशन। ये साहब फुल फिगर है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का। आज थोड़ा ज्यादा हम इस पर रुक गए, तो कोई बात नहीं। कितना देर है? 5:15। ओके। लेकिन इन प्रैक्टिस, जैसा कि हमने कहा, आपके यहाँ सीबीएसई ने कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किया था। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में ये सारे पोर्शंस को कवर करना था, लेकिन फिर लौट के आ गए इसी पर। सो इन थियरी टैक्सोनॉमी का इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, जिसमें पर्सनालिटी के ऑल द 3 डोमेन्स आर टू बी कवर्ड, टेकन केयर ऑफ, to be taught, to be tested, but in practice हमारा पूरा सिस्टम जो है वो कॉग्निटिव डोमेन तक ही लिमिटेड है। हमारे टीचिंग लर्निंग सेटअप में 90%, 80% एम्फेसिस इसी के ऊपर है। हम अभी जो सवाल बनाएंगे, वो भी कभी आप सवाल बनाए जिंदगी में? शिक्षक है 15 साल 20 साल का, जिसमें रिसीविंग का टेस्ट किया हो आपने? नहीं बनाया होगा। और सवाल से रिसीविंग अफेक्टिव डोमेन स्किल्स कैनॉट बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस। सवाल, प्रश्न से, क्वेश्चन से ये स्किल टेस्ट नहीं होते। इनके टेस्ट करने के अलग डिवाइसेस होते हैं, जो आप कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जब करते होंगे, तो आप करते होंगे वो डिवाइस का इस्तेमाल। ऑब्जर्वेशन है इसका एक डिवाइस, एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, ऑटोबायोग्राफी है, क्वेश्चनायर है, इन्वेंट्री है, क्रिटिकल इंसिडेंट्स हैं। सो इसके डिवाइसेस अलग है। इसका तो खैर कहना ही नहीं। इसका तो जब तक मैदान में नहीं उतरेंगे, जब तक स्टेज पर नहीं ले जाएंगे, जब तक स्विमिंग की जांच जब तक पानी में नहीं कूदेगा, तब तक कैसे होगा? तो इसका तो अलग है ही। ये भी हम नहीं इस पर ध्यान देते, नहीं करते, हम इस पर करते हैं। तो इसीलिए ये चर्चा को हम आगे इसी पर सीमित रखेंगे। आपके लिए, आइडिया के लिए पूरा ये हमने शो किया, और थोड़ी चर्चा ज्यादा ही हो गई। आगे बढ़ते। तो हाँ, और इसी का जो शुरू कहा, व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एजुकेशन, सो फैसिलिटेटिंग ऑल राउंड ग्रोथ इन लर्नर्स पर्सनालिटी। ये तीनों डोमेन का जब प्रोपोर्शनल डेवलपमेंट हो, वही ऑल राउंड ग्रोथ है। मीन्स आफ्टर अंडरगोइंग एनी कोर्स, स्पेंडिंग 10 years, 12 years, 15 years, ग्रेजुएशन हो जाता है 15 years में, फिर 2 साल और पढ़ा तो MA हो गया, so 17 years. Whatsoever time is, after spending a certain time, after undergoing a certain course, students should come out of the educational institution setup. कैसा आना है? Intellectually sound, emotionally balanced and physically fit. इसीलिए आप देखते हैं कि जितना गेम्स है, स्पोर्ट्स है, एनसीसी है, एनएसएस है, डांस है, ड्रामा है, आजकल ये चला है योगा है, ये हमारे कुरिकुलम का पार्ट है कि नहीं है? इसके लिए हम टीचर हमारे अपॉइंट होते हैं, फिजिकल एजुकेशन के टीचर होते हैं, स्पोर्ट्स के टीचर अलग होते हैं, योगा के टीचर अलग होते हैं। जो ये तीनों का जब प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट हो, तीनों डोमेन का, वो ऑल राउंड ग्रोथ है। दिस इज द थियरी बिहाइंड एजुकेशनल सेटअप, बट इन प्रैक्टिस हम जानते हैं कि इस दोनों पर हम कोई खास ज्यादा ध्यान, ये ऑप्शनल है। बच्चा खेल कूद में भाग ले, मन हो नहीं ले, एनसीसी में नाम लिखावे, मन हो नहीं लिखावे, ठीक है ना, एनएसएस में मन हो जाए, मन हो नहीं जाए, योगा क्लास जाए मत जाए, हमारा इस पर स्ट्रेस नहीं, ये है स्ट्रेस इस पर है। तो इसीलिए हम इसी पर थोड़ी और चर्चा करेंगे।
और इसीलिए देखिए काट दिया, हिंदी देवनागरी पढ़ते हैं। व्यक्तित्व है, ये संज्ञानात्मक पक्ष है कॉग्निटिव डोमेन, ये भावनात्मक है अफेक्टिव, ये साइकोमोटर, दोनों को कट कर दिया, इसको छोड़ दिया, क्योंकि आगे इसी पर बढ़ेंगे। अब देखिए खत्म कर देंगे 5 बजे, कोई दिक्कत नहीं। और साहब ये क्या है, ये चीजें बार बार आएगी। मेरा दूसरा क्लास है, चैप्टर है, वो है टैक्सोनॉमी पार्ट 2, तो फिर इसकी चर्चा। फिर मैं आपको बता दूं, जब क्वेश्चन आइटम राइटिंग करने से पहले फिर इनकी चर्चा होगी, राइट। और जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो फिर इसकी चर्चा होगी। और एक चीज मैं बता दूं आपको कि आप पूरे मजे में ये एंजॉय कीजिए पूरे कोर्स को, क्योंकि हर चीज आपको हमारी तरफ से फुल कोऑपरेशन रहेगी। क्वेश्चन जब लिखेंगे उससे पहले पूरा डिस्कस होगा, कैसे वो इंटरफेस, कैसे उसको चलाना है, कैसे उसको ऑपरेट करना है, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम लोग रहेंगे। और ये आपका कोई टेस्ट इम्तिहान नहीं होगा कि whether you are able to write question item or not। ये आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो क्वालिफिकेशन है, आप सब ट्रेंड क्वालिफाइड टीचर हैं, उसका वी आर गोइंग टू यूटिलाइज योर स्किल्स। सो ऐसा है, ये कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई टेस्ट नहीं आपका होगा, आपके कोऑपरेशन से हम सब ये काम करेंगे। तो साहब ये देखिए, तो हमने कहा कि कॉग्निटिव डोमेन पर ये स्ट्रेस ज्यादा है। अब कॉग्निटिव डोमेन के पहला है नॉलेज, आप देख रहे हैं नॉलेज के ये ब्रेकअप्स हैं। नॉलेज तो समझ गए, इंफॉर्मेशन या ज्ञान, बट उसके क्या क्या, जब हम, अच्छा एक चीज देखिए, ये टैक्सोनॉमी जो है ये किसी लैंग्वेज, मणिपुरी, हिंदी, नेपाली, तमिल, गुजराती के लिए नहीं बनाई गई थी। यहाँ तक कोई एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के लिए भी नहीं बनाई गई थी कि ये साइंस के लिए है, चाहे आर्ट्स के लिए, कि सोशल साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, नहीं। एजुकेशन एज ए होल, किसी भी सब्जेक्ट का ज्ञान जब हम कहते हैं तो उसके कितने ब्रेकअप्स हैं देखिए। पहला तो है नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स। नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स के अंदर क्या आता है, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं उसके, राइट। जैसे आपके मणिपुरी साहित्य का एक टेक्निकल टर्म होगा भक्ति साहित्य, ठीक है। भक्ति साहित्य के अंदर जाते तो राम भक्ति अलग है, कृष्ण भक्ति अलग है, शिव भक्ति अलग है, शक्ति भक्ति अलग है। तो टेक्निकल टर्म राम भक्ति या भक्ति कहने से एक सर्टेन उसकी मीनिंग है, वही ना है टर्मिनोलॉजी कि जिस वर्ड का एक खास मतलब हो, जो उस सब्जेक्ट को जानने वाले ही उसको समझते। तो जब हम नॉलेज कहते हैं तो नॉलेज ऑफ terminology, knowledge of facts and figures, knowledge of traditions and conventions, knowledge of trends and sequences, knowledge of classifications and categories, knowledge of criteria, knowledge of methodologies, and knowledge of universals का मतलब होता है theories and principles। इतना होने के बाद तब पता लगता है कि हाँ नॉलेज के इतने डायमेंशंस हैं। टर्मिनोलॉजी का अगर कोई कहता है कि हाँ भाई हमको मणिपुरी साहित्य का ज्ञान है, तो उसको टर्मिनोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, उसको फैक्ट्स का ज्ञान होना चाहिए कि कितने एजेस हैं मणिपुरी साहित्य में, कब से कब तक किस एज को माना गया है, किस एज का क्या नाम है, उस एज में कौन बड़े बड़े पोएट हुए हैं, उनकी कौन सी किताबें हैं या रचनाएं हैं, कृतियां हैं, ऐसा। फिर हर लिटरेचर, अच्छा ये जानते हैं, हमने कहा कि ये जो टैक्सोनॉमी का ये जो ब्रेकअप है ये यूनिवर्सल है, हर सब्जेक्ट, हर डिसिप्लिन के लिए ये एप्लीकेबल इसको माना गया। लेकिन इट इज अ वेरी मीन्स व्हाट इज दैट स्वीट सरप्राइज दैट लिटरेचर पर ये सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता, सबसे ज्यादा एप्लीकेबल था, हमको ऐसा लगता है। आप भी देखिए, पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, विशेष तथ्यों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, नॉलेज ऑफ ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशंस। अब मेडिकल साइंस का क्या कन्वेंशन होता होगा क्या हो, दवाई देना है, ऑपरेशन करना, पैसा लेना है, उसमें कन्वेंशन क्या है।
लेकिन खैर जस्ट आई एम जोकिंग. सो दिस इज यूनिवर्सल फॉर ऑल डिसिप्लिन्स, बट टू माय व्यू इट इज मोस्ट एप्लीकेबल टू लिटरेचर. सो ऐसे करते करते मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये होगा कि जब नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बनाइएगा, when you go for writing knowledge based question, please keep in mind these breakups and you try to base your questions on these breakups. कंटेंट जो आप लीजिए, और जाहिर से मणिपुरी लिटरेचर और मणिपुरी ग्रामर पर आप क्वेश्चन बनाए तो इसी से लीजिए. टर्मिनोलॉजी का ज्ञान है कि नहीं स्टूडेंट को, तो टर्मिनोलॉजी बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनाइए. कुछ क्वेश्चन बनाइए फैक्ट्स एंड फिगर्स बेस्ड. कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाइए जो ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशंस की उसमें बात हो. लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि हमको हमारे स्टूडेंट्स के लेवल का ख्याल रखना है. क्या हमारे स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स, यहां तक तो मिनिमम है ये टर्मिनोलॉजी का, फैक्ट्स फिगर्स का, लेकिन क्या ये ट्रेडिशन एंड कन्वेंशन का ज्ञान उनको हम देते हैं क्या? शायद नहीं देते. तो नहीं देते तो इस पर सवाल नहीं बनाएगा. लेकिन समझ के रखिए, एज ए टीचर वी मस्ट नो दैट दिस इज द फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज. इतनी चीजें आती हैं जब हम नॉलेज करते हैं. उसके बाद आता है कंप्रीहेंशन. कंप्रीहेंशन की डिफिनीशन हमने बताई, बोध, जिसको हिंदी में हम लोग बोध बोलते हैं, कि कंप्रीहेंस नॉलेज इज नोइंग, नॉलेज इज हैविंग, एक्वायरिंग, स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन इज नॉलेज. कोई भी इंफॉर्मेशन को लेना, उसको दिमाग में रखना, और जब जरूरत पड़े तो एग्जामिनेशन में या टीचर पूछे तो उसको बता देना, ये नॉलेज है. लेकिन कंप्रीहेंशन का कोई की डिफिनीशन है कि एबिलिटी टू रिलेट वन इंफॉर्मेशन विथ अदर इंफॉर्मेशन इज कंप्रीहेंशन. खाली इंफॉर्मेशन रखना ये नॉलेज है, बट इंफॉर्मेशन को रिलेट कर पाना, इसलिए नॉलेज से ये एक स्टेप ऊंचा स्किल है. ये है. इसका 3 एक्टिविटीज बताई गई है, ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन और एक्सट्रापोलेशन. इन तीनों एक्टिविटीज, थ्रू दीज 3 एक्टिविटीज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ a student is surfaced, it comes out. और टेस्टिंग के लिए जब तक कोई चीज सरफेस नहीं होगी, वो ऊपर नहीं है, दिखाने सामने नहीं आएगी, तब तक उसकी टेस्टिंग कैसे होगी? चाय का कप सामने रखेगी या रखेगा तब ना उसकी टेस्टिंग होगी कि चीनी दिया है कि नहीं दिया है, टेस्ट कैसा है, स्वाद कैसा है, अच्छा गर्म है कि ठंडा हो गया. तो उसी तरह से किसी भी चीज को टेस्ट करने के लिए उसको सामने आना जरूरी है. तो ये तीनों जो एक्टिविटीज हैं ये ऐसी हैं कि जिनके द्वारा, जिनके थ्रू दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट इज सरफेस्ड, and once something is surfaced, once understanding is surfaced, then only you can test that. तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगी कि कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन जो आप बनाएंगे उसमें ये तीनों में एक्टिविटी में से कोई एक्टिविटी जरूर डालिएगा जो आपको अच्छा लगे. हमको लगता है सबसे आसान है ये इंटरप्रिटेशन, माने एक्सप्लेनेशन. ठीक है, एक्सप्लेन विथ क्या कॉन्टेक्स्ट जो है, ऐसा क्वेश्चन जो होता है, हिंदी में कहते हैं संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए. वो क्वेश्चंस जो हैं एकदम टिपिकल एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, एक्सट्रापोलेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. जब आपके टीचिंग के पैटर्न को समझ के स्टूडेंट खुद कंक्लूजन ड्रॉ करने लगे, वो एक्सट्रापोलेशन है. जैसे आपने बता दिया मैथमेटिक्स के टीचर ने 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, हो गए, स्टॉप, पढ़ाई खत्म हो गई. बट व्हेन योर स्टूडेंट थिंक्स दैट सर वाज टेलिंग और मैडम वाज टेलिंग 2 + 2 = 4 and 4 + 2 = 6, then it is for sure that 6 + 2 = 8, 8 + 2 = 10, 10 + 2 = 12. ठीक, क्योंकि बेसिक उसके पास है, अंक जानता है, 1 से 10 तक वो जानता है, और एक पैटर्न आपने बता दिया कि 2 में 2 जोड़ने से 4 होता है, फिर उसमें 2 जोड़ोगे तो फिर 6 हो जाता है. और उसके बाद अगर वो खुद से सोचने लगे, कंक्लूजन ड्रॉ करने लगे, वही एक्सट्रापोलेशन है. तो ये रीअरेंजमेंट टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना,
रीअरेंजमेंट क्वेश्चन, वो एक्स्ट्रापोलेशन के लिए ठीक होता है। तो रिक्वेस्ट यही है कि अगर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन बनाते हैं आप, तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक्टिविटी आप उसमें जरूर डालिए। ट्रांसलेशन का डालना थोड़ा डिफिकल्ट है, और ये हमारा कोई मतलब ट्रेडिशन भी ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन में, बल्कि पूछते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछते, है ना। हमने अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का क्वेश्चन आंसर शीट जांच रहे थे, तो उसमें था हिंदी से अंग्रेजी में एक पैसेज ट्रांसलेशन, एक पैसेज अंग्रेजी से हिंदी में कीजिए। तो ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, एक्स्ट्रापोलेशन, ऐसी एक्टिविटी डालेंगे तब आपका क्वेश्चन जो है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। एप्लीकेशन की भाई साहब कोई ये नहीं है, किसी भी रूल को, किसी भी थियोरी को, किसी भी सब्जेक्ट के प्रिंसिपल्स को व्हेन ए स्टूडेंट इज एबल टू ट्रांसफॉर्म इनटू रियलिटी, दैट इज एप्लीकेशन। और मैं आपको बताऊं, हो गया, यही रुक जाएंगे, ये एनालिसिस सिंथेसिस में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बच्चों के लिए सारा हम काम करने जा रहे हैं, वो इतना बोझ उन पर नहीं डालेंगे। ये सब बहुत हाई ऑर्डर स्किल है, एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, तो उस पर हम समय नहीं बिताएंगे। एप्लीकेशन तक रखना। ग्रामर क्वेश्चन जो है ना, 90% ग्रामर क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही होते, ठीक है, क्योंकि ग्रामर क्या है, सेट ऑफ रूल्स है, और ग्रामर का नॉलेज का मतलब है उसका एप्लीकेशन आप जानते हैं। जैसे आप देखिए हिंदी में, मैं मुझको मणिपुरी नहीं मालूम, थोड़ा बहुत हिंदी जानता हूं, ये देखिए संधि, सच्चिदानंद एक शब्द है, 3 शब्दों को मिलकर बना है, सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद। तो ग्रामर के संधि के कुछ रूल्स हैं, और उसको ब्रेकअप करने के लिए देते हैं, संधि विच्छेद करें, सच्चिदानंद को विच्छेद कीजिए। अगर लिख दिया सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद बराबर सच्चिदानंद, इसका मतलब संधि रूल्स जानता है। इसका उल्टा भी है, ब्रेकअप देके कहते हैं शब्द को जोड़िए। तो चाहे संधि हो, चाहे मेक सेंटेंसेस हो, एक वर्ड देते हैं उसके आधार पर बोलते हैं मेक सेंटेंसेस, ये तो यूनिवर्सल है, मणिपुरी में भी ऐसा ही होगा। सो अगर सेंटेंस बना देता मींस सेंटेंस फॉर्मेशन का एक रूल है, हर लैंग्वेज का एक रूल है। हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है, अंग्रेजी में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा जो भी हो जिस लैंग्वेज का। तो ग्रामर क्वेश्चंस आर मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। सो ग्रामर का क्वेश्चन बनवाइए, वो आपका एप्लीकेशन बेस्ड हो जाएगा। ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन यानी एक्सप्लेनेशन और एक्स्ट्रापोलेशन, जो हमने कहा रीअरेंजमेंट टाइप क्वेश्चंस उसके लिए सुटेबल हैं, ये अगर बनाइए आप, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन एकदम होगा, टेक्निकली बिल्कुल होगा। लीजिए, टर्मिनोलॉजी के बारे में पूछिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में पूछिए, और मेरा ख्याल है लोअर लेवल के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, स्कूल लेवल के लिए मेरे से यही दोनों काफी है। वैसे जानकारी के लिए आप जानिए कि इतनी चीजें आती हैं, जब हम क्या बोलते हैं, नॉलेज बोलते हैं, सुनने में छोटा, हमने कहा कि वो नॉलेज नहीं है जो हमारे यहाँ नॉलेज है, लेकिन देखिए कि उनका भी नॉलेज का कितना बड़ा उसका स्कोप है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही टैक्सोनॉमी की चर्चा खत्म हुई, वैसे एनालिसिस सिंथेसिस तक भी हम पहुंचे हुए हैं, 2-3 स्लाइड और था। तो थैंक यू वेरी मच। अब 5 मिनट 10 मिनट है, अगर कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो कल मिलेंगे। Hello, sir. जी बोलिए। Thank you, sir, for your beautiful, wonderful, insightful, elaborative, presentation, and you have taught everything. I think we are